Assalamu alaikum. Myself, Manohar sir. I will be taking your bookkeeping and accountancy for 12th Commerce, that is of Maharashtra State Board. First of all, I would like to introduce about all the chapters that are in new syllabus, that is for the year 2020 and 2021. The chapters name are Introduction to Final Account, Accounts of Not-for-Profit Concern, Reconstruction of Partnership, that is Admission of Partner, Reconstruction of Partnership, that is Retirement of Partner, Reconstruction of Partnership, that is Death of Partner, Dissolution of Partnership Firm, 7th Bills of Exchange, Company Accounts, that is Issue of Shares, Analysis of Financial Statement, and the last one is Computers in Accounting. First chapter that I will start today is Bills of Exchange. The history of Bills of Exchange begins with a simple word that is called as trade. What do we mean by trade? ठीक है, ट्रेड जैसा आप सब लोगों को पता होगा, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। तो हम लोगों को यहाँ पर वही चीज बाइंग और सेलिंग को ही ध्यान देना है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with an intention to earn maximum profit is trade. As we all know that buying and selling takes place on cash basis as well as credit basis. So if the transaction is of cash basis, buying and selling comes to an end after receipt of money, after receipt of cash. But when the transaction are on credit, it plays an important role. Here I have introduced credit transaction plays an important role in the world of business. When goods and services are obtained and payment will be made in future, it is called as credit transaction. There are many misunderstandings between a buyer and seller, whether the buyer will pay the amount on time or not. So, for that misunderstanding to be cleared, we prepare a statement, a bills of exchange or promissory note. Okay, now the definition as per the Bills of Exchange, Section 5 of Negotiable Instrument Act 1881. Section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881 defines Bills of Exchange. A Bills of Exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. Now, I will explain it in simple language. Bills of Exchange is a document in writing. First point. Bills of Exchange is a document in writing. It means it is always be in writing. No one can say that the Bills of Exchange can be made oral. Secondly, it is an unconditional order. There is no condition, but it is an order. It has to be signed by the drawer, that is maker, and he is directing the purchaser to pay a certain amount to a specific person or to him after a period of time. ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक पर्सन जिसने सेल किया है, प्रोडक्ट बेचा है, वो पर्सन राइटिंग में दूसरे पर्सन यानी बायर से राइटिंग में लिखवा के लेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, लिखा होगा कि हम यानी परचेसर फ्यूचर में इतना अमाउंट इस पर्सन को पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड. Now, next topic is features of Bills of Exchange. As we have discussed in definition, all the points are clearly explained in definition. First, it should be in writing. Second point is it should be stamped.
you have to prepare, you have to affix a revenue stamp on that. Third, bills of exchange must contain a date. Next, it must contain a order to pay certain sum of money. It is not a request, it is an order that the person will pay certain sum of amount of money. Next, the order must be unconditional, there must be no condition. Next, it must be signed by the maker. The person, the seller, has to make a signature on it. And the last one is the amount must be payable either to a certain person or his order to the bearer of bill. Means the bill has to be paid on behalf of drawer as he has directed, or as he says, or to himself, or to the bearer of the bill. Next point, that are parties to bills of exchange. Here there are three parties to bills of exchange. The first party is drawer. Drawer means the seller of goods. The drawer means the seller of goods who has sold the goods, who has drawn the bill. He is creditor, he has to receive the amount of bill. Second person is drawee. Drawee is the person on whom the bill is drawn. In short, we can say that drawee is the person who has purchased the goods. He is debtor, he has to pay amount to the creditor. And third is payee. Payee is a person to whom the payment is to be made. In simple words, drawer means seller of goods और the person who draws the bill. जिस पर्सन ने सेल किया है या जिस पर्सन ने बिल ड्रॉ किया है वो है ड्रॉवर. ड्रॉवी द पर्सन हु हैज परचेज द गुड्स और द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल टू पे. जिस पर्सन ने परचेज किया या जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया पैसा पे करने के लिए वो हो गया ड्रॉवी. थर्ड पर्सन इज पेई. द पर्सन who has agreed to pay, the person who will receive the amount at the end, he is payee. जिस पर्सन को भी ऑन ड्यू डेट आखिरी में जिसको भी पैसा मिला वो हो गया पेई. नेक्स्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड हियर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. दिस फॉर्मेट appears for 5 marks in your exam. This is a blank format. Kindly go through it. Here everything is mentioned. You have to do as it is mentioned. For example, bills of exchange has to be written in bold letters, in center, in block letters. After that, on the left hand side, we have to write stamp, and that has to be kept in box. Just in front of stamp, in the right hand side, we have to write drawer name. Below that it is drawer address and the date of bill drawn. After that, on the left hand side, you have to prepare a box in which you have to write amount in figures. This is the first part. After that, you have to write a paragraph that will specify what amount has to be paid. The paragraph starts with period of bill that will be provided to you in the question. Period of bill after date paid to Mr. Miss Dash or his her order the sum of rupees dash only for the value received. Here dash means you have to write everything in detail. First of all, period, then the name of payee and his address, then the amount. Next, after completing the paragraph, on the right hand side below the paragraph, you have to prepare a signature and write the drawer's name. Again, on left hand side, we will write drawee name and his address, and after that in the center we will again write accepted drawee's name and bill of acceptance date. एक बार बता दूं आप लोगों को, इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सेंटर में लिखा जाएगा बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल में. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना. लेफ्ट हैंड साइड में हम बनाएंगे एक स्टैम्प का बॉक्स. स्टैम्प पूरा कैपिटल में लिखा जाएगा. राइट हैंड साइड में स्टैम्प के जस्ट सामने लिखा जाएगा ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस, और उसी के नीचे आएगा डेट ऑफ बिल ड्रॉन.
ये सारी चीजें जो भी ब्लैंक डैश करके दी गई, ये सब आप लोगों को क्वेश्चन में मिलेंगे। जहां अपना डेट ऑफ बिल ड्रॉन हो गया, उसी के सामने हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल। उसके बाद में एक पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ में जो भी लिखेंगे सब वर्ड्स में होना चाहिए, नंबर्स में नहीं होना चाहिए। शुरुआत करेंगे पीरियड ऑफ बिल, आफ्टर डेट, पे टू मिस्टर मिस, पेई का नाम, उसका एड्रेस, और हिज हर ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज, जितने भी अमाउंट का बिल है वो पूरा वर्ड्स में आएगा, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। पैराग्राफ खत्म होने के बाद में सिग्नेचर, और सिग्नेचर के बाद में नीचे आएगा ड्रॉवर का नाम। लेफ्ट हैंड साइड से फिर स्टार्ट करेंगे, ड्रॉवी का नाम और उसका एड्रेस। फिर सेंटर में लिखा जाएगा एक्सेप्टेड, ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। ये जितना भी डैश किया गया है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में क्लियरली दी जाएगी। इन केस अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो वो हो सकता है सिर्फ पेई का नाम मिस हो सकता है। पेई का नाम नहीं होगा तो डायरेक्टली लिखा जाएगा पे टू मी और माय ऑर्डर। ठीक है, होप सो दिस फॉर्मेट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल बिगिन विथ आवर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, क्लियरली पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला डिटेल दिया है ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश राव, एड्रेस है 648 करोल प्लाजा, SB रोड, पुणे। ड्रॉवी का नाम दिया मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट दिया है 44,500। टेन्यूअर या टर्म, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, 3 मंथ दिया हुआ है। डेट ऑफ बिल इज 3 जून 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 7 जून 2019। अब इसी को बेस बनाकर हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पे पूरा बना के दिया गया है। ध्यान से देखना, सेंटर में शुरुआत में लिखा गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल लेटर में लिखा है स्टैम्प। राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा पहले ड्रॉवर का नाम, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है मिस्टर प्रकाश राव। ड्रॉवर के नाम के बाद में आएगा उसका एड्रेस, जो कि दिया है 648 करोल प्लाजा, SB रोड, पुणे। एड्रेस खत्म होने के बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल भी दिया गया है क्वेश्चन में। डेट ऑफ बिल आप लोग देखेंगे दिया है 5th नंबर पे 3 जून 2019। डेट ऑफ बिल के सामने हमने लिखा है अमाउंट इन बॉक्स एंड दैट ऑल्सो इन ऑल वर्ड्स, इन नंबर्स, 44,500। पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पीरियड क्वेश्चन में दिया था 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ही लिखा जाएगा पैराग्राफ में। 3 months after the date pay to me or my order the sum of rupees 44,500 only for the value received। राइट हैंड साइड में नीचे सिग्नेचर किया गया है। सिग्नेचर के बाद में ड्रॉवर का नाम रिपीट किया है प्रकाश राव। लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करेंगे 2, ड्रॉवी का नाम राहुल देव, एड्रेस 236 राजापुर रोड, जलगांव। अच्छा, नीचे आएगा फिर सेंटर में एक्सेप्टेड, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी, यानी ड्रॉवी का नाम आएगा नीचे, दैट इज राहुल देव, और लास्ट में है 7 जून 2019 द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट गलत दिया गया है, उसको मैं पहले ही बता दूं आपको। ड्रॉवी का नाम योगेश तिलक दिया हुआ है, इसका एड्रेस है नारायण पेट, पुणे। इन सॉल्यूशन में गलती से बता दिया गया नारायण पेट अमरावती, तो हमको सॉल्यूशन में भी नारायण पेट पुणे ही लिखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 7 डिटेल्स दिया गया है इसमें। ड्रॉवर का नाम मिस्टर मुकुंद देसाई, एड्रेस 14 हेरिटेज हाइट, नागपुर। ड्रॉवी का नाम योगेश तिलक, नारायण पेट, पुणे। अमाउंट दिया गया है 30,000। पीरियड दिया गया है, टर्म दिया गया 90 डेज। डेट ऑफ बिल है 16 जुलाई 2019। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 जुलाई 2019, और लास्ट में पेई का नाम है श्रवण दावे पनवेल। अब फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसी के सामने स्टैम्प बॉक्स में बनेगा कैपिटल लेटर्स में। स्टैम्प के सामने आएगा ड्रॉवर का नाम मुकुंद देसाई, नीचे एड्रेस आएगा नंबर 14 हेरिटेज हाइट, नागपुर।
उसी के नीचे आएगा डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल है 16 जुलाई 2019। लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे एक बॉक्स अमाउंट लिखने के लिए 30,000, वो भी पूरा नंबर्स में, फिगर्स में। पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे। 90 डेज आफ्टर द डे पे टू, पेई का नाम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रवण दावे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सिग्नेचर आएगा राइट हैंड साइड, सिग्नेचर में लिखेंगे नीचे ड्रॉवर का नाम जो कि है मुकुंद देसाई। फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टू, ड्रॉवर का नाम मिस्टर योगेश तिलक, उसका एड्रेस आएगा नारायण पेट, गलती मैंने पहले बताई थी, इसमें आगे लिखना चाहिए पुणे लेकिन लिख दिया गया है अमरावती, पुणे आना चाहिए वहां पे। अच्छा, फिर उसके बाद लिखेंगे एक्सेप्टेड, और एक्सेप्टेड के बाद में आएगा सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी यानी योगेश तिलक, और लास्ट में आएगा डेट 20 जुलाई 2019। एक और एग्जांपल बताते हैं, थर्ड एग्जांपल थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि नंबर वाइज तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, पूरा पैराग्राफ वाइज इन्फॉर्मेशन है, तो शायद थोड़ा समझने में तकलीफ हो अपने को, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो वो डिफिकल्टी खत्म हो जाती है। पहला इन्फॉर्मेशन पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। पार्टनर्स ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस नरीमन पॉइंट मुंबई, समीर गुप्ता। यहाँ पे समीर गुप्ता उस पार्टनर का एक नाम बताया गया है जो कि पार्टनर निर्जा पब्लिशिंग हाउस में है, नरीमन पॉइंट एड्रेस है मुंबई। ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 मंथ, ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये समीर गुप्ता ड्रॉवर है, 1 महीने का बिल बनाया है 9 Feb 2020 को। ये डेट ऑफ बिल है, 62,000 अमाउंट है। नम्रता कोकिल ये ड्रॉवी का नाम है जिसके ऊपर बनाया गया है। पनवेल खारगर एड्रेस दिया है उसका। पेएबल टू मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावला, पेएबल टू जिसको पेएबल कहा गया मतलब वो हो जाता है पेई। द बिल वॉज एक्सेप्ट ऑन द सेम डे फॉर 2 months, एक्सेप्ट किया गया लेकिन एक्सेप्ट में एक कंडीशन रखी गई है 2 महीने के लिए। ध्यान से अगर देखें तो सेकंड लाइन में दिया गया 1 month के लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिया गया है 2 months। इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब शुरुआत करते हैं फॉर्मेट बनाने के लिए। तो पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है सेंटर में। नेक्स्ट स्टैम्प ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, स्टैम्प के सामने आएगा ड्रॉवर का नाम। ड्रॉवर का नाम दिया गया है निर्जा पब्लिशिंग हाउस नरीमन पॉइंट मुंबई, और डेट लिखेंगे हम लोग जिस दिन बिल बनाया गया था वह है 9 फरवरी 2020। नेक्स्ट अमाउंट लिखेंगे बॉक्स में इन फिगर्स 62,000। पैराग्राफ से शुरू करते हैं। 1 month आफ्टर द डेट पे टू मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावला और their order the sum of ₹62,000 only for the value received। पैराग्राफ में जब हम पीरियड लिखेंगे तो जितने महीने का बिल बनाया गया था वो लिखा जाएगा जो कि है 1 महीने का। पेई का नाम भी आएगा इसमें, पेई का नाम दिया गया था विद्या ट्रेडर्स। फिर पैराग्राफ के बाद में लिखा जाएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर में बताएंगे समीर गुप्ता, ही इज अ पार्टनर ऑफ दैट पब्लिशिंग हाउस, इसलिए समीर गुप्ता का नाम आएगा, समीर गुप्ता पार्टनर फॉर निर्जा पब्लिशिंग हाउस। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से फिर स्टार्ट करेंगे। 2 ड्रॉवी की डिटेल्स आएगी। नम्रता कोकिल, पनवेल रोड खारगर। लास्ट में एक्सेप्टेंस, ध्यान से देखें एक्सेप्टेंस कहा गया है लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद में लिखा है फॉर 2 months बिकॉज शी इज एक्सेप्टिंग फॉर 2 months पीरियड। द बिल इज ड्रॉन फॉर 1 month बट शी इज एक्सेप्टिंग फॉर 2 months।